कि लीनियर मोशन में जो मास का रोल है रोटेशनल मोशन में इट विल बी दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जनरल हम लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, अगर आर्बिट्रेरी शेप बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x dash is summation mi/r square. Of a continuous body you can write where dm is mass of one small part one dimensional body है तो we dm is mass per unit length into length, mass per unit area into area, and for three-dimensional body it is rho into dv. Then you have अगर हम डिफरेंट बॉडीज का लिखें तो so rod of mass same length L, about center it's ml square by 12, about one edge it's ml square by 3. हमने if you remember +1 में एक और केस किया था, if the rod makes an angle theta with the axis, इस केस में फॉर्मूला क्या था? If the rod makes an angle theta, say rod है हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं इसके स्मॉल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता से इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, स्मॉल लेंथ dx मास dm at a distance x, its moment of inertia will be perpendicular distances x sin theta. So moment of inertia हमने small part का लिखा था ऐसे, I is equals to I is dm is mass per unit length into length. वेरिएबल इसमें सिर्फ x है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी अब यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए थीटा इज इक्वल्स टू 90 तो ये केस बन जाएगा, if theta is equal to 90 it will be ml square by 3. Then if you have a rectangular sheet,
Moment of inertia about this axis I1. This axis के about so किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो यू कैन यूज पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हमने लिखा था दैट if you know moment of inertia about two axes x and y which are in the plane of the body, the moment of inertia about perpendicular axis is iz is ix plus iy. So ix पता था, iy पता था, this will be the sum of these two. Similarly ix and iy पता है and इसको sum कर दिया. And parallel axis theorem क्या थी? Moment of inertia about any axis is moment of inertia about of the body about axis passing through center of mass plus mh square. H is perpendicular distance between the two axes. इसी को हम स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं. अगर स्क्वायर होगा तो iz this i5 will be equals to ml square by 6 and this will be 2 ml square by 3. कि अगर स्क्वायर शीट है तो you can simply substitute that L is equals to B. like अगर मेरे पास स्क्वायर शीट है moment of inertia about I1, I2 and I3. Same or different? I1, I2 same and I3 different. Okay. I1 is square sheet of length L. I1 और I2 same या different? और कितनी value? This will be IZ. This will also be same. IZ will be ml square by 6. I3 कितना? अगर ये एंगल थीटा है तो I3. I3 will be I3 और I4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा या डिफरेंट होगा?
I3 and I4. इस एक्सिस के about moment of inertia और इसके about moment of inertia. Will it be same or different? ये तो easy question है, ये तो बता दो. Same. So moment of inertia is same about all axes passing through center of the square in the plane of the square. So center of the square से pass कर रहे हैं तो same ही आएगा because इन दोनों का sum भी IZ ही होगा. I3 and I4 दिया अगर तो perpendicular है तो इनका sum भी IZ के equal है. And इनका moment of inertia same है, so it will be ml square by 3. And if you have to find triangular sheet, so you can have so find moment of inertia about this axis. इसको करना solve ज़रा क्या आएगा? Moment of inertia about xx dash. Moment of inertia about xx dash. Two-dimensional body है. So mass per unit area पहले small area फिर integrate को तो जल्दी से करो क्या आंसर आता है. फॉर्मूला याद है किसी को क्या था? बिकॉज हमने इसको सॉल्व कैसे किया था, कोई भी केस आ जाएगा हम इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड करते थे. पहले इसका एरिया लिया था, इसका मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर इंटीग्रेट और आंसर आपका आएगा आई एक्स एक्स डैश एस एम एन स्क्वायर बाय 6. अब कुछ रेगुलर बॉडीज जो ज्यादा यूज होंगी, रिंग, डिस्क. रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम. अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखूंगा सबका, बाकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेंगे, परपेंडिकुलर से या पैरेलल से. Ring is mr square. And solid cylinder is 2 by 5 mr square. So ring of mass m, radius r. Find moment of inertia about xx dash.
Moment of inertia about xx dash. करो सॉल्व क्या आता है. Moment of inertia about xx dash. Moment of inertia about xx dash. थ्री एम आर स्क्वायर कैसे आ गया. थ्री एम आर स्क्वायर बाय 2. नहीं, रिंग है ये, रिंग. Moment of inertia about xx dash. हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर ये सेंटर है तो अबाउट डायमीटर क्या होगा. इट्स हाफ एम आर स्क्वायर. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी. ये अगर आर है रेडियस, दिस विल बी, ये 45 एंगल, ये भी 45, ये 90 है. The perpendicular distance between the two is r by root 2. And moment of inertia about xx dash is moment of inertia about diameter passing through center, and it will be plus md square. Plus r by root 2 का whole square. Next is square sheet. ये गलत ना करना, ये सेम क्वेश्चन +1 में कराया हुआ है. Moment of inertia about xx dash. आपको इस एक्सिस के अबाउट पता है. अगर ये 15 डिग्री का एंगल है तो यू नो दिस इज
Moment of inertia about x dash. क्या है आंसर? अभी ये डिस्टेंस पता है, दिस इज h, ये एंगल 15 तो ये 60, h की वैल्यू निकाल लो एंड देन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बिकॉज अगर ये l by रूट 2 है, ये 15 है, ये 45 था, तो पूरा एंगल 60 हो जाएगा। सो अगर मैं से अब इस ट्राइंगल को लूं से ABC, ABC sin 60 is h upon l by root 2. Then you can apply parallel axis theorem. Semicircular disk, mass m, radius r. Moment of inertia about A perpendicular to the plane of disk. इस एक्सिस के about moment of inertia निकालो. Moment of inertia of disk about an axis perpendicular to the plane of the disk in passing through point A. अभी ये बता about C, it will be
इस एक्सिस के अबाउट इट्स m r square by 2. इसके अबाउट बताना है, अबाउट पॉइंट A. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट A. तो स्टॉक या एंगुलर मोमेंटम जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए पॉइंट के अबाउट. So find moment of inertia of the semicircular disk about point A. हमें about center C पता है, center of curvature it's m r square by 2. क्या है आंसर? Moment of inertia of semicircular disk about an axis passing through A perpendicular to the plane of the disk. थ्री बाई टू m r square नहीं, गलत है. एक बार सॉल्व करके देख लो आता है क्या. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पूछा होता तो दैट वुड हैव बीन इजी. कोई भी एक्सिस पूछ सकते थे, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई करेगा समवेयर ओवर हियर. ये जो डिस्टेंस x1 होगा, x1 इज 4r by 3 pi. Then they can ask you moment of inertia about point P. तो अगर पहले ICM निकालना है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P निकालना है तो इट्स ICM प्लस
mh square. H is this distance, r minus x1. Similarly, अगर ICM पता है, IA निकालना है, तो that will be this distance h dash. किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फर्स्ट फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे. बिकॉज अगर हमें आईसी पता है और आईसीएम निकालना है, तो इन दोनों में बेसिकली रिलेशन था दैट आईसी इज इक्वल्स टू आईसीएम प्लस एम एक्स वन स्क्वायर. सबसे पहले आईसीएम ही निकलेगा, and then you can find about any axis. फिर उसके बाद कोई भी एक्सेस दे दे perpendicular to the plane of disk, you can find using formulas. रिजल्ट जो भी आता है, सिर्फ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले आईसीएम निकालना है, आईसीएम निकालने के बाद किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अगर मैं आपसे बोलूं से कट आउट पोर्शंस लाइक मास एम रेडियस आ रही है, 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, moment of inertia of remaining disk whose 1/4 part is removed. क्या आएगा आंसर? About an axis, the axis of rotation passing through center perpendicular to the plane of disk. Z axis के about moment of inertia बताना है. Z axis के about moment of inertia. Moment of inertia about Z axis. Complete disk का moment of inertia क्या होगा about Z axis? So it will be half into 3m by 4 into r square.
ये तो सिमेट्रिकली था, बेसिकली शेप पे डिपेंड करता है। अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है, 1/4 डिस्क है, 3/4 डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली हाफ इनटू मास ऑफ दैट पार्ट इनटू आर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। बट अगर रिमूव्ड पार्ट किसी पॉइंट से है, कि लाइक अगर आपको ऐसे दिया है, कि अगर हमें इस फॉर्म में दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, टोटल डिस्क का मास m रेडियस r। तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इस पार्ट का रिमूव करना है, सो फाइंड द आंसर। Moment of inertia of remaining disk about an axis passing through center C perpendicular to the plane of disk. रिमेनिंग पार्ट का निकालना है, तो पूरी डिस्क में से जो पार्ट रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट करो। पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास 1/4 है, रेडियस हाफ है। यही सॉल्व करना, बिकॉज अगर मैं ये रिमूव्ड पार्ट देखूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट c1, that will be half mass of disk into half mr square। IC के अबाउट निकालना है, तो इट वुड बी कट आउट पोर्शन का, that is IC1 plus mh square। IC1 is mr square by 32 plus, so पूरी डिस्क में से ये माइनस कर दिया, so that will be the moment of inertia of remaining part।
तो हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको ऐसे 9 स्क्वायर्स में डिवाइड किया, फिर हर छोटे स्क्वायर को इस पूरे का मास m था, स्क्वायर है ये, ऐसे 9 इक्वल स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर दिया, ये रिमूव कर दिया, एंड हर छोटे स्क्वायर में से भी ऐसे स्क्वायर पार्ट रिमूव कर दिया। हमने बताना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मतलब अगर ये साइड L है, which is a/3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, पूरे बड़े स्क्वायर में से एक बड़ा स्क्वायर और बाकी के 8 स्मॉल स्क्वायर्स रिमूव किए हैं, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, पूरे स्क्वायर में से स्मॉल पार्ट्स का माइनस करना है। देखो इसको अगर मैं m1 लेता हूँ, इनके मासेस को m2 लेता हूँ, ये सब m2, बिकॉज इसकी साइड 1/3 है, तो इसका एरिया 9 टाइम्स लेस, इसका मास भी 9 टाइम्स लेस। ये फर्दर 1/3, so mass of smaller removed part
m2 is m by 81. कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी स्क्वायर का, moment of inertia of m1. So 1 by 6 mass into its side into square. So m by 9 into a by 3 का square into 1 by 6. Similarly m2 का बताओ. Moment of inertia of m2 about its center. One by 6 mass is m by 81. Remaining part का moment of inertia. ये इस m1 का माइनस कर दिया बीच में से. ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो जरा ध्यान से, बिकॉज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस के अबाउट I2. ये चार स्क्वायर्स जो हैं 1, 2, 3 एंड 4, इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट विल बी √2 into a/3. और जो बाकी चार स्क्वायर है उनका डिस्टेंस है सेंटर से a/3. सो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है दिस इज 4 टाइम्स, मतलब चार स्क्वायर है तो 4 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m2 अबाउट दिस, और फिर इन चारों का माइनस. जो ये एडवांस से एमसीक्यूज में दिया था, मतलब किसी वे में 1 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं था. 2 मिनट भी अगर हम लगाएं तो इट टेक्स एटलीस्ट 5 मिनट्स ये सारी कैलकुलेशन करने में. तो कंसेप्ट देखो समझ में आ रहा है, बिकॉज इसमें तो बहुत सारे स्क्वायर्स रिमूव किए हैं कि 8 छोटे और एक बड़ा, बट कम भी करके वो दे सकते हैं सेम क्वेश्चन.
Next to right. Find moment of inertia. Find moment of inertia. If two uniform semicircular discs, each of radius r. If two uniform semicircular discs, each of radius r, with mass m and 3m, are joined as shown. About an axis. About an axis. Perpendicular to the plane of disk and passing through the center of mass. About an axis perpendicular to the plane of disk and passing through center of mass. हमें ऐसे दिया है. Moment of inertia of this disk. दो डिस्क को ज्वाइन करके बनाया of mass m and 3m. Moment of inertia बताना है हमने of the composite disk. जो composite disk बनी उसका moment of inertia perpendicular to the plane and passing through center of mass. बिकॉज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सेंटर ऑफ मास निकालना है. सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालो किस पॉइंट पे लाई करेगा. so इसका सेंटर ऑफ मास C1 पे. and x is 4r by 3 pi. इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ, x coordinate of center of mass is combined system का center of mass यहाँ पे at a distance of x by 2. निकाल दो, अब तो हो गया सॉल्व. ICM will be देखो ये आ रहा रिजल्ट.
ठीक है. So next होता है कि you have to know how to find the torque acting on a body. Torque का फॉर्मूला क्या था? R क्रॉस F, यहाँ हम उसको लिखते थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रही है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के हिसाब से उनको वेक्टोरली ऐड करेंगे. लाइक अगर मेरे पास एक रॉड है, placed on horizontal table. Find the net torque acting on the rod. A rod is placed on horizontal surface. चार forces लग रही हैं. Find the net torque which acts on the rod. Find the net torque which acts on the rod, because net torque निकलेगी then angular acceleration will be torque upon moment of inertia. So you find the net torque.
आप फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनाओ सबसे पहले। हमें सिर्फ कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ही चाहिए मेनली। So 50 तो 50 sin 37. 50 sin 37 will be 50 into 3 by 5. ये 30 न्यूटन। ये 40 न्यूटन। Similarly 40 sin 53. This will be 40 into 4 by 5. 8 into 4, 32. Components which are parallel to the rod उनको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें, ड्यू टू F1 एंड F3, अगर सिर्फ यही दो फोर्सेस लग रही हो, तो सिर्फ F1 लग रही हो, तो दिस रॉड विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ F1 के कारण, क्लॉकवाइज, और F3 के कारण भी क्लॉकवाइज। सो इन दोनों की टॉर्क ऐड होगी। F2 एंड F4 के कारण द टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज F2 और F4 के कारण रॉड एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो इन दोनों की टॉर्क ऐड करेंगे, F2 और F4 की ऐड करेंगे, एंड देन लार्जर माइनस स्मॉलर विल बी द नेट टॉर्क। सो F1 and F3, you can say torque due to F1 and F3 is in same direction. Resultant torque. F2 का perpendicular distance है L/4. So net torque कितनी आ गई? Net torque will be L, L, and moment of inertia is L upon ml square by 3. So basically net torque निकालने के लिए you have to find the direction due to each torque और फिर solve होगा। And आपने इसके जैसे न्यूमेरिकल्स किए थे +1 में, जैसे आपको दिया होता था रॉड का मास m लेंथ L,
Find relation between T1 and T2 for odd to be in equilibrium. Yeah, find T1 and T2. Find T1 and T2 for odd to be in equilibrium. Find T1 and T2 for odd to be in equilibrium. mg और mg/4 mg और mg by 4. अच्छा, टोटल अपवर्ड नहीं फोर्स सॉरी 3/4 mg और mg/4 नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों को जीरो करना है. अपवर्ड फोर्स इज T1 plus T2, डाउनवर्ड इज mg. तो T1 plus T2 इज mg. तो फिर किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो, because weight acts at the center of mass. दो इक्वेशंस बनेंगी. T1 plus T2 is mg. और एक आप अबाउट C बना सकते हो. because ये डिस्टेंस L by 6 आएगा. So again, rod placed on horizontal surface.
When talk about point A, B, and C in all three cases, दोनों cases में. Talk about A, talk about B, and talk about C. Talk about A, B, and C. दोनों diagrams में. अगर इसमें निकालें, talk about point A. इसके कारण टॉक टू एफ इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल, और इनकी टॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में है सेम. इन दोनों के कारण टॉक सेम डायरेक्शन है ऑपोजिट. 2f के कारण रॉड शुड रोटेट क्लॉकवाइज. इन दोनों के कारण एंटी क्लॉकवाइज. देखो ध्यान से. इनकी टॉक f और f की इसमें ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? सब्ट्रैक्ट करूं. क्यों? टॉक के डायरेक्शन कैसे निकालते थे? r क्रॉस f. अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं तो r हो गया ये डिस्टेंस, ये r ये f. टॉक इज आउटवर्ड्स, ये r ये f आउटवर्ड्स, ये भी r क्रॉस f इनवर्ड्स. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. बेसिकली यही डायरेक्शन निकालने का मेथड था ना, r क्रॉस f. तो नेट टॉक कितनी? नेट टॉक कितने? नेट टॉक निकाल लो 3 पॉइंट्स के अबाउट. 5/4 FL. बी और सी के अबाउट भी. बी और सी के अबाउट भी, और सेकेंड केस में भी सेम. So 2f by L minus f into L by 4 minus f into L by 2. So minus fl by 4 minus fl by 2. B और C के अबाउट भी सिमिलरली निकालो. तो तीनों सेम सेम आ रही है. सेम आ रही है या सेम होते हैं? अगर हम निकाल के देखें इसको सेकेंड को, सेम होते हैं. बी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो इस बी के कारण तो टॉक 0. इन दोनों की टॉक फिर भी 2f, सॉरी यहां से निकालेंगे तो डिस्टेंसेस L plus L by 4. This comes out to be, प्लस L/4 कैसे? sorry, L by 2 plus L by 4. So this comes out to be 3L by 4 2f into 3L by 4.
कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की? सिमिलरली ये भी निकालोगे तो दिस विल आल्सो बी सेम। इस केस में निकालें तो फर्स्ट आएगी 3FL माइनस सिमिलरली बी के अबाउट निकालो। सेम आएगा डिफरेंट? बी के अबाउट सेम है। टॉक अबाउट बी। अगर सेम आनी होती तो मैं क्वेश्चन ना देता। बी के अबाउट टॉक निकालो। फाइंड टॉक अबाउट बी। सो 2FL आ रही है। अलग आ रही है ना, सी के अबाउट भी अलग ही आएगी। तो क्या कंक्लूड करूं? फर्स्ट डायग्राम देखो, नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स फर्स्ट डायग्राम में 0। 0 सेकंड में F to the right. So conclusion is when net force is 0, you can find talk about any point. It will come out to be same. But if net force is not 0, then talk about each point will be different. So जब इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, अगर नेट फोर्स 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टॉक किस पॉइंट के अबाउट निकालते हो। बट अगर नेट टॉक 0 नहीं है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द टॉक, फिर किस पॉइंट के अबाउट निकालें। If rod is free to rotate, Center of it will mass. rotate about its center of mass. And if the rod is not free to rotate, Hinged point में. then जहां से वो hinged है, और hinge force कैसे मार्क करते थे? hinge force कैसे मार्क होती थी? बिकॉज अगर hinged है तो एक hinge force भी आएगी ना, उसको कैसे मार्क करते थे? अगर मेरे पास कोई भी बॉडी hinged है, बीट रॉड डिस्क स्फीयर कुछ भी hinge कर दिया, तो hinge force कैसे मार्क होती है? hinge force की डायरेक्शन आपको क्लियरली समझ आ रहा है किस डायरेक्शन में लेनी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू मार्क टू डायरेक्शंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड विद ईच अदर आल्सो। मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैंने z एक्सिस मान लिया तो हिंज फोर्स और x और y एक्सिस दोनों डायरेक्शंस में मार्क करोगे। याद है वो डोर वाली प्रॉब्लम थी HC वर्मा में, उसमें हिंज फोर्स मार्क होती थी, हिंज फोर्स पूछी भी थी उसने कि हिंज फोर्स निकालो डोर पे कितनी एक्ट करेगी। सो अगर हिंज्ड है तो आप टॉक अबाउट हिंज पॉइंट निकालते हो। अगर हिंज नहीं है, फ्री टू रोटेट है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो यू कैन फाइंड द टॉक अबाउट एनी पॉइंट। सो इसको लिख लो, बिकॉज ये याद रखना, अदरवाइज अगर आप नेट फोर्स 0 नहीं और आप रैंडम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉक निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यू कैन राइट व्हेन द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, when the net force on the body is 0, then talk about any point. Then talk about any point is same. But if net force on the body is non-zero,
But if net force on the body is non-zero, then talk about different points will be different. But if the net force is non-zero, then talk about different points will be different. Second point, like if a body is free to rotate, it rotates about its center of mass. If body is free to rotate, it rotates about its center of mass. With angular acceleration, alpha is equals to tau by I. With angular acceleration, alpha is equals to tau by I. With tau and I. With tau and I as torque and moment of inertia about center of mass respectively. Tau and I as torque and moment of inertia about center of mass respectively. If body is hinged at any point, if body is hinged at any point, then it rotates about the hinge point and its angular acceleration is tau is equals to I alpha. अब इसमें tau क्या है? इसमें torque क्या है? Tau is, if body is hinged and it's not free to rotate and tau is equals to I alpha, तो tau क्या होगा? Tau is equals to I alpha में torque कौन सा होगा? नेट टॉर्क। नेट टॉर्क। नेट टॉर्क क्या होता है? Talk about hinge. टॉक अबाउट हिंज। अच्छा, मैं आपको बोलूं टॉक अबाउट हिंज पॉइंट इज 50, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 10, एंगुलर एक्सेलरेशन इज, talk about hinge point is 50, moment of inertia about that point is 10, angular acceleration is, अगर मैं आपको बोलूं R और F परपेंडिकुलर हैं, about a given point R and F are perpendicular, torque is maximum, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम ही होगी या मिनिमम भी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है? अगर टॉर्क मैक्सिमम है तो जरूरी है एंगुलर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम ही हो? याद करो +1 थोड़ी सी, टाउ क्या था इसमें? So when body is hinged at a point, and tau is equals to I alpha लिखो, where tau is talk about axis of rotation. Tau is talk about axis of rotation. ठीक लिखाया कि गलत लिखाया? याद आया कुछ +1 का? मेरे पास हमने एक एग्जाम्पल किया था इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि अगर मेरे पास एक डोर है,
नॉर्मल जैसे आपके घर में नॉर्मल डोर लगे होते हैं, सो एक डोर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा xx डैश। मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाई हैंडल पे F, तो टॉर्क कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क कितनी और उसकी डायरेक्शन कितनी? R इज दिस, F इज इन विड्थ, तो R क्रॉस F, टॉर्क इस डायरेक्शन में आया। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई F, ऐसे डोर के ऊपर ऊपर से खींच रहा हूं इसको, तो R क्रॉस F की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर। डोर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अगर मैं डोर को ऐसे ऊपर से खींचता हूं तो ये घूमेगा? No, sir. बिकॉज टॉर्क का कोई कंपोनेंट ही नहीं है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हमें टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा में लेना होता है कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिकॉज अगर मैं लूं से इस बॉडी पे फोर्सेस जैसे भी है, मान लो इस बॉडी पे टॉर्क लग रही है इस डायरेक्शन में, से एंगल थीटा, तो आपको जो टॉर्क लेना है वो इसका कंपोनेंट लेना है जो इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द एक्सिस। बिकॉज जो इधर टॉर्क लग रहा है दिस विल नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया बॉडी को, तो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क व्हिच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। बिकॉज आपने इसका एक और केस किया था, अगर आपको याद है, हमारे पास एक ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल था, इसमें एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, टॉर्क ड्यू टू वेट अबाउट x6 डैश किस डायरेक्शन में आएगा? टॉर्क ड्यू टू वेट अबाउट x6 डैश, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r क्रॉस f परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी कैन नॉट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। ग्रेविटी के कारण जो टॉर्क लग रही है इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो और कौन सी फोर्सेस लग रही थी? नॉर्मल रिएक्शन, इसका टॉर्क होगा नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क। नहीं, सो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ली थी इसीलिए। सो आपको बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट लेनी है या नहीं लेनी है किसी प्रॉब्लम में, उसके लिए आपको टॉर्क निकाल के देखना पड़ेगा, and then you have to see whether the torque which can it produce angular acceleration or not, because not all the torque produce angular acceleration. Only if torque has a component along the axis then it can produce angular acceleration. So next time करते हैं, पढ़ के देखना, अगली बार torque और angular momentum ही करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैं कुछ क्वेश्चन देखूंगा, मिलेंगे तो सेंड करूंगा, उनको ट्राई करके देखना। मतलब इन एडिशन टू असाइनमेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले।